زمانہ قدیم کی بات ہے جب زمین کے نقشے آج سے مختلف تھے اور انسانوں کا رشتہ فطرت سے بہت گہرا تھا۔ ہمالیہ کے دامن میں واقع ایک ایسا گمنام گاؤں تھا جس کے 3 اطراف اونچے پہاڑ اور چوتھی طرف ایک ایسا جنگل تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں وقت کی رفتار تھم جاتی ہے۔ اس گاؤں کے آخری سرے پر، جہاں سے جنگل کی حد شروع ہوتی تھی، ایک شکستہ سی جھونپڑی تھی جو لال خان لکڑہارے کا ٹھکانہ تھی۔ لال خان کی عمر 60 کے پیٹے میں تھی۔ اس کے چہرے پر پڑنے والی جھریاں اس کی محنت کش زندگی کی گواہ تھیں۔ اس کی آنکھیں گہری تھیں جن میں عجیب سی چمک اور سکون تھا۔ گاؤں کے باقی لکڑہارے صبح ہوتے ہی اپنے کلہاڑے تیز کرتے، تولیاں بناتے اور جنگل کے ان حصوں کا رخ کرتے جہاں صنوبر اور دیودار کے جوان اور ہرے بھرے درخت ہوتے۔ وہ ان درختوں کو بے دردی سے کاٹتے اور شام کو بھاری بھرکم لٹھے بیل گاڑیوں پر لاد کر لاتے تاکہ شہر کے بازاروں میں مہنگے داموں بیچ سکے۔ لیکن لال خان کا طریقہ الگ تھا۔ وہ کبھی کسی ٹولی کا حصہ نہیں بنا۔ وہ فجر کی ٹھنڈی ہواؤں میں بیدار ہوتا، اپنی بیٹیوں کے ماتھے پر پیار دیتا اور ایک چمڑے کے تھیلے میں سوکھی روٹی اور پیاز رکھ کر خاموشی سے جنگل کی گہرائی میں اتر جاتا۔ اس کے پاس ایک پرانا کلہاڑا تھا، مگر اس کی دھار برسوں سے درختوں کے خون سے آلودہ نہیں ہوئی تھی۔ لال خان کا ایمان تھا کہ یہ درخت زمین کی سانسیں ہیں، اور جو شخص زمین کی سانس روکتا ہے اس کے اپنے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ وہ سارا دن اس گھنے جنگل میں بھٹکتا رہتا۔ اس کی نظریں آسمان کی طرف بلند درختوں پر نہیں بلکہ زمین پر بچھی ہوئی سوکھی پتیوں اور ٹہنیوں پر ہوتی تھیں۔ وہ ایک ایک کر کے ان ٹہنیوں کو جمع کرتا جو آندھیوں کی وجہ سے خود بخود ٹوٹ کر گر چکی ہوتی تھیں۔ کبھی کبھی اسے پورا دن بھٹکنے کے بعد بھی اتنا ایندھن نہ ملتا کہ وہ اسے بیچ کر ایک وقت کا پورا کھانا خرید سکے۔ ایک دوپہر جب سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ سر پر تھا، لال خان ایک پرانے برگد کے سائے میں سستانے کے لیے بیٹھا۔ اس نے اپنی پوٹلی سے سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اسے پانی میں بھگو کر کھانے لگا۔ اسی اثنا میں اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی چڑیا اپنے گھونسلے سے گر گئی ہے۔ لال خان نے بڑے پیار سے اسے اٹھایا، اسے پانی پلایا اور اپنی لاٹھی کی مدد سے اسے دوبارہ اس کی ماں کے پاس پہنچا۔ اس لمحے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے پورا جنگل ایک پرسکون سرسراہٹ کے ساتھ اسے دعا دے رہا ہو۔ گاؤں میں لوگ اسے پاگل لال کہتے تھے۔ ایک دن گاؤں کے چوہدری نے اس سے پوچھا، لال خان، تم جوان دری خاتون ایت؟ دیکھو، رحیم اور کریم نے نئے مکان بنا لیے، ان کی بیٹیاں ریشمی لباس پہنتی ہیں، اور تم ہو کہ آج بھی اس ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں پڑے ہو۔ لال خان نے بڑی عاجزی سے جواب دیا، چوہدری صاحب، ریشم اور مکان مٹی ہو جائیں گے، لیکن جو زخم میں ان درختوں کو دوں گا وہ میرے نامہ اعمال میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ درخت اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، میں ان کی عبادت میں مخل نہیں ہونا چاہتا۔ میرے نصیب کا رزق ان سوکھی لکڑیوں میں بھی ہے، بس ڈھونڈنے کی ہمت چاہیے۔ مگر لال خان کا دل اس وقت کٹ کر رہ جاتا جب وہ شام کو گھر لوٹتا اور اپنی بیٹیوں کو پیوند لگے کپڑوں میں دیکھتا۔ بڑی بیٹی زینب، جو اب شادی کی عمر کو پہنچ رہی تھی، دن بھر دوسروں کے گھروں کی چکی پیستی تاکہ کچھ اضافی پیسے کما سکے۔ مریم، جو اس سے چھوٹی تھی، اپنی آنکھیں لال کر لیتی تھی کیونکہ وہ رات کے مدھم چراغ میں کپڑے سیتی تھی۔ اور سب سے چھوٹی نوری، جو معصومیت کا پیکر تھی، اکثر بھوک کی وجہ سے جلدی سو جاتی تھی۔ اس رات لال خان کو نیند نہیں آئی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی اصول پسندی کہیں اس کی بیٹیوں کی زندگیوں پر بھاری نہ پڑ جائے۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور گلگلا کر کہا، اے غیب کے خزانوں کے مالک، میں نے کبھی تیری مخلوق پر ظلم نہیں کیا، میری بیٹیوں کی تقدیر پر رحم فرما۔ مجھے کوئی ایسا راستہ دکھا کہ میرا دامن بھی صاف رہے اور ان کے چہروں پر بھی مسکراہٹ آ جائے۔ اگلی صبح لال خان ایک غیر معمولی عزم کے ساتھ گھر سے نکلا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آج کی یہ صبح اس کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہونے والی ہے۔ وہ جنگل کے اس حصے کی طرف چل پڑا جہاں آج تک کوئی انسان نہیں گیا تھا، جسے لوگ کالا بن کہتے تھے۔ اگلا قدم کالا بن، یہ محض ایک نام نہیں تھا بلکہ گاؤں والوں کے لیے ایک دہشت کی علامت تھا۔ اس گھنے جنگل کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں درختوں کی جڑیں زمین میں نہیں بلکہ انسانوں کے خوف میں پیوست ہیں۔ یہاں کی ہوائیں سائیں سائیں نہیں کرتیں بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی دبی آواز میں نوحہ پڑ رہا ہو۔ سورج کی روشنی یہاں پہنچتے پہنچتے اپنا راستہ بھول جاتی تھی اور ہر طرف ایک سبز مائل اندھیرا چھایا رہتا تھا۔
लाल खान, जो अपनी जिंदगी के 60 साल जंगल की खाक छानते गुजार चुका था, आज एक ऐसी हिम्मत के साथ कालाबन की हुदूद में दाखिल हुआ जो सिर्फ इस बाप के पास होती है जिसकी बेटियों के ख्वाब गुर्बत की धूल में दब रहे हों। इसके कदमों के नीचे सूखे पत्तों के टूटने की आवाज खामोश फिजा में गूंज पैदा कर रही थी। इसे बार बार महसूस हो रहा था कि कोई इसे देख रहा है, कोई ऐसा वजूद जो पत्तों की सरसराहट में छुपा हुआ है और दरख्तों के पीछे से इसे ताड़ रहा है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, दरख्तों की जसामत बढ़ती गई। यहाँ के शाहबलूत और चीड़ के दरख्त इतने पुराने थे कि उनके तने किसी किले की दीवारों की तरह चौड़े थे। लाल खान ने देखा कि यहाँ सूखी टहनियां नहीं बल्कि पूरे के पूरे गिरे हुए दरख्त मौजूद थे, लेकिन उन पर कोई हाथ नहीं लगाता था। खौफ एक ऐसी जंजीर थी जिसने यहाँ की लकड़ी को महफूज रखा हुआ था। दोपहर के वक्त लाल खान एक अजीम अलशान देवदार के दरख्त के पास पहुंचा। ये दरख्त शायद सदियों पुराना था। इसकी शाखें जमीन तक झुकी हुई थीं जैसे कोई बूढ़ा सजदे में हो। लअल्ल खैनत रवबी, इसने अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर रखी और आसमान की तरफ देखा, जहां से रोशनी की एक लकीर बमुश्किल इस तक पहुंच रही थी। इखड्डा, अगर यहां भी मुझे कुछ ना मिला तो आज ज़ैनब के हाथ फिर खाली रहेंगे, इसने बुलंद आवाज में कहा। अचानक जंगल की फिजा बदल गई। परिंदे यकदम खामोश हो गए और हवा का झोंका रुक गया। जमीन के अंदर से एक हल्की सी थरथराहट महसूस हुई, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज हरकत कर रही हो। लअल्ल खैना वनरुआ, इसने देखा कि सामने वाली झाड़ियों के पीछे एक तेज नीली चमक उठी। जब वो डरते डरते करीब पहुंचा तो इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वहां लकड़ियों का एक बहुत बड़ा गट्ठा पड़ा था, मगर वो आम लकड़ियां नहीं थीं। वो संदल और ऊद की कीमती लकड़ियां थीं जो खुशबू से महक रही थीं। उन लकड़ियों को इतनी नफासत से बांधा गया था जैसे किसी माहिर कारीगर ने तैयार किया हो। उनके ऊपर रेशम की एक छोटी सी डोर बंधी हुई थी जिसमें चांदी का एक सिक्का लटक रहा था। लाल खान ने कांपते हाथों से इस सिक्के को छुआ। असली एंडित, ये किसका है? इसने बुलंद आवाज में पुकारा। क्या यहाँ कोई है? इसकी आवाज चट्टानों से टकरा कर वापस आई, मगर कोई जवाब ना मिला। इसने काफी देर इंतजार किया, फिर सोचा कि शायद ये किसी मुसाफिर का बोझ है जो वो भूल गया है, लेकिन कालाबन में कौन सा मुसाफिर आएगा। आखिरकार इसने इसे अल्लाह का इनाम समझकर उठा लिया। वो गट्ठा गैर मामूली तौर पर हल्का था, जैसे इसमें लकड़ियां नहीं बल्कि पर भरे हों। जब वो शाम को गांव पहुंचा और वो लकड़ियां बाजार में दिखाई तो ताजिरों के हुजूम लग गए। इस रात लाल खान इतने पैसे लेकर घर लूटा जितने इसने पूरे साल में नहीं कमाए थे। घर में पहली बार खुशी का चिराग रोशन हुआ। बेटियों के लिए अच्छा आटा, घी और मिठाई आई। इला मा तसलसल लतरा, लाल खान रोज काला बन जाता और इसे तैयार शुदा गट्ठा मिल जाता। लाल खान की गुर्बत दूर होने लगी, इसकी कमर का झुकाव कम हो गया और इसकी बेटियों के चेहरों पर रौनक आ गई। लेकिन इंसान का दिल बड़ा अजीब है, जब इसे बहुत कुछ मिलने लगता है तो वो इसकी वजह तलाश करने की बजाय अपनी हक्कानियत साबित करने लगता है। एक सुबह लाल खान के दिल में ख्याल आया, अगर रोजाना मुझे इतना मिलता है तो इसका मतलब है कि यहाँ लकड़ियों का कोई बड़ा जखीरा है। अगर मैं खुद देखूं कि ये कौन कर रहा है तो शायद मैं हमेशा के लिए अमीर हो जाऊं। वो इस दिन वक्त से पहले कालाबन पहुंचा और इसी अजीम देवदार के पीछे छप गया। त्यू दिरबाद अस्वतरी तरह सनाइदी, जमीन फटी और एक ऐसा वजूद नमूदार हुआ जिसे देखकर लाल खान का खून मुंजमद हो गया। वो 20 फुट लंबा एक इफरीत था जिसका जिस्म दरख्त की छाल की तरह खुरदरा था। इसके सर पर सींग नहीं बल्कि शाखें उगी हुई थीं और इसकी आंखें जंगल की आग की तरह दहक रही थीं। इफरीत ने अपने हाथ से हवा में लहर पैदा की और लकड़ियों का एक नया गट्ठा जाहिर हो गया। जैसे ही इफरीत वापस जाने लगा, लाल खान का पाँव एक सूखी टहनी पर पड़ गया जिसके टूटने की आवाज गूंज उठी। आफरिद्दुमुला, इसकी निगाहें लाल खान के पीछे वाले दरख्त। इंसान जब खुशियों की आदत डाल लेता है तो इसे भूल जाता है कि जिंदगी का दूसरा रुख दुख और आजमाइश है। लाल खान के घर में अब सुकून था। बेटियों के माथे पर अब फिक्र की शिकने नहीं थी बल्कि मुस्तकबिल के सपने थे। इफरीत, बरज़ख के दिए हुए सके और बेश कीमत लकड़ियां उनकी जिंदगी बदल चुके थे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक सर्द शाम जब बर्फीले पहाड़ों से आती हवाओं ने पूरे गांव को अपनी लपेट में ले रखा था,
लाल खान की सबसे छोटी और चहेती बेटी नूरी, जो अब 8 बरस की हो चुकी थी, अचानक सहन में खेलते हुए गिर पड़ी। ज़ैनब और मरियम दौड़ी हुई आई। उन्होंने इसे उठाना चाहा मगर नूरी के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही थी। वो तितली जो सारा दिन घर के आंगन में उड़ती फुड़ती थी, अब एक साकित पत्थर की तरह बिस्तर से लग गई थी। गांव के सबसे बड़े हकीम को बुलाया गया। इसने नब्ज देखी, आंखों का मुआयना किया और अफसोस से सर हिला दिया। लअल्ल खैन, ये कोई आम बुखार आचोट नहीं है। ये फालिजन कोहन की वो किस्म है जिसका इलाज इस इलाके की जड़ी बूटियों में नहीं है। शायद शहर के बड़े शिफाखानों में कुछ हो सके, मगर इसके लिए इतनी दौलत चाहिए जो किसी बादशाह के पास ही हो सकती है। लाल खान का कलेजा मुंह को आ गया। इसके पास पैसे तो थे, मगर इतने नहीं कि वो दूर दराज शहर के शाही तबीबों की फीस भर सके। इसने अपनी तमाम जमा पूंजी नूरी के इलाज पर लगा दी, मगर नूरी की हालत दिन बा दिन बिगड़ती चली गई। इसकी आंखों की वो मासूम चमक मध्यम पड़ने लगी और वो घंटों छत को तकती रहती। एक रात जब नूरी दर्द से करा रही थी, लाल खान से रहा ना गया। वो शदीद बर्फबारी के बावजूद घर से निकला और पागलों की तरह कालाबन की तरफ दौड़ा। ठंडी हवाएं इसके चेहरे को छलनी कर रही थीं, मगर इसका दिल नूरी की तड़प से कहीं ज्यादा जल रहा था। वो इसी पुराने देवदार के पास पहुंचा और अपने घुटने जमीन पर टेक कर दहाड़े मार कर रोने लगा। ए बरज़ख, ए जंगल के मुहाफिज, अगर तो मुझे सुन रहा है तो जाहिर हो जा। मेरी बेटी मर रही है, मेरी दियानतदारी का वासिता, मेरी मदद कर। फिजा में एक भारी बोझ सा महसूस हुआ और देवदार की शाखें झक गईं। इफरीत बरज़ख अपनी पूरी हैबत के साथ नुमूदार हुआ। इस बार इसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी हमदर्दी थी। ए बरज़ख, ए जंगल के मुहाफिज, अगर तो मुझे सुन रहा है तो जाहिर हो जा। मेरी दियानतदारी का वासिता, मेरी मदद कर। फिजा में एक भारी बोझ सा महसूस हुआ और देवदार की शाखें झक गईं। इफरीत बरज़ख अपनी पूरी हैबत के साथ नुमूदार हुआ। इस बार इसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी हमदर्दी थी। इलाअल्ल खैन, मैं जानता था कि तो आएगा। मैं तेरे घर की दीवारों के पीछे होने वाली सिसकियों से वाकिफ हूं, लेकिन याद रख, मैं जंगल का मुहाफिज हूं, मौत और जिंदगी का नहीं। इफरीत की आवाज गूंजी। लाल खान ने इसके कदम पकड़ लिए। तूने मुझे दौलत दी, सुकून दिया, पर अगर नूरी नहीं रहेगी तो मैं उन सिक्कों का क्या करूंगा? क्या तेरे इस वसी जंगल में कोई ऐसी दवा नहीं जो मेरी बच्ची को दोबारा खड़ा कर सके? इफरीत ने गहरी सांस ली, जिससे जंगल के पत्ते उड़ने लगे। एक रास्ता है लाल खान, इस जंगल के सबसे गहरे गार में, जहां सूरज की पहली किरण ने भी कदम नहीं रखा, वहां एक कदीम जादुई कुनवा है। इसे चश्मान हयात कहा जाता है। इसका पानी किसी भी मुर्दा होती रग में जिंदगी दौड़ाने की ताकत रखता है। लाल खान की आंखों में उम्मीद की शमा जली। मुझे वहां ले चुल्लू, मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा। इफरीत ने इसे खबरदार किया। वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। वो रास्ता ख्वाबों और शराबों से भरा हुआ है। तुम अगर वहां से पानी निकालना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं, बल्कि अपने दिल के साफ होने पर यकीन रखना होगा। अगर तुम्हारी नीयत में राई बराबर भी खोट हुआ, तो वो पानी तुम्हारे हाथ लगते ही जहर बन जाएगा। बरज़ख ने लाल खान को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जो आम इंसानों की नजरों से पोशीदा था। वो गारों के अंदर से होता हुआ जमीन की गहराइयों में उतरने लगा। वहां की दीवारें अजीब सी रोशनी से दमक रही थीं। आखिरकार वो एक वसी हाल नुमा गार में पहुंचा, जिसके एन दरमियान में पत्थरों से बना एक छोटा सा कुनवा था। इसके पानी से एक नीली लहर उठ रही थी जो पूरी गार को मुनव्वर कर रही थी। लाल खान ने कांपते हाथों से एक बर्तन निकाला और कुनवे में डाला। जैसे ही पानी निकला, इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी गार मौसीकी से भर गई हो। वो पानी दूध की तरह सफेद और शहद की तरह गाढ़ा था। लीजिए लअल्ल खन, अपनी बेटी को इस पानी से गुस्ल दे। हर गुस्ल के साथ इसकी एक एक रग में जिंदगी वापस आएगी। लेकिन याद रखना, ये पानी बिकाऊ नहीं है। जिस दिन तुमने इसे बेचने का सोचा, ये कुनवा हमेशा के लिए खुश्क हो जाएगा। लाल खान वो पानी लेकर घर की तरफ भागा। इसके दिल में एक ही धन थी, नूरी की मुस्कुराहट। इसने घर पहुंचकर नूरी को इस पानी से गुस्ल दिया। पहले गुस्ल के बाद नूरी ने अपनी उंगलियां हिलाई। दूसरे गुस्ल के बाद इसने अपने बाप को पहचाना।
और जैसे ही 7वां गुस्ल मुकम्मल हुआ, नूरी अपने बिस्तर से उछल कर खड़ी हो गई और अपने बाप के गले लग गई। ज़ैनब और मरियम की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। लाल खान ने सजदा शुक्र अदा किया, मगर वो नहीं जानता था कि ये मौजिज़ा जहां शिफा लाया है, वहीं हासिदों और लालचियों की नज़रें भी इसके घर की तरफ मोड़ चुका है।